दिस इज इम्पोर्टेंट कि अब ये जुलाई से जो फेज 3 और फेज 4 है, इन्हें आप ऐसा समझे कि आप सबके बराबर हैं रेस में। अब यहाँ जो तेज भागेगा वो रेस में आगे निकलेगा। तो अगर आप जितना सिमुलेट करेंगे, जितना हार्डवर्क करेंगे, उतना आपको लक पे कम रिलाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, कोई भी मुझसे पूछता है कि लक का कितना रिलेवेंस है यूपीएससी में, तो आई यूजुअली से कि अगर आप बिना पढ़े एग्जाम में जा रहे हो प्रीलिम्स में, तो भी आपकी पॉसिबिलिटी है क्लियर करने की प्री, बट फिर आपको लक पे ऑलमोस्ट 100% रिलाई करना पड़ेगा। होता क्या है कि हम शुरू में हर चीज़ के नोट्स बनाने लगते हैं, शुरू में हमें हर चीज़ इंपॉर्टेंट लगती है, न्यूज़पेपर हो जाए चाहे एनसीईआरटीज हो जाए, बट वो फिर बाद में एक्यूमुलेट होते होते इतना लंबा हो जाता है कि हमारे काम नहीं आ पाता। अलग अलग किस्म के टॉपर्स होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक सवा साल ही तैयारी करी है, कुछ लोगों ने बहुत पहले से तैयारी करी है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन टॉपर्स को जिनकी जर्नी मोर और लेस सिमिलर है टू व्हाट यू वांट। कि आप 1.5 साल की तैयारी कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उस 1.5 साल में प्रिपेयर किया है। तो ये 3 महीने, अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, तो ये 3 महीने हैं जब एक पेड़ काटने वाला अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन करता है। इट इज अकिन टू दैट। आप कुछ काटा पीटी एक्चुअली उसमें नहीं कर रहे हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली आप अपने रास्ता बना रहे हैं कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ, आप अपनी कुल्हाड़ी शार्पन कर रहे हैं। So, hello students, good evening. I hope you all are doing well. So, as planned, we have today with us Mukund Singh Cheher. He secured All India Rank 273 in 2022 Civil Services exam, and he is an IRS officer now. He has also reattempted this year, which would have been his final attempt, uh, of course, to improve his services to get into IAS, which was his desired services. Uh, he has always had a passion for history. It was his graduation subject also. It was his optional also. And there's a very interesting anecdote that he has shared with us. Once upon a time, an astrologer told him that do not give civil services exam, as in your chart you cannot become a successful officer or an officer, because he was also failing state PCS back then. He has had a long story before even reaching IRS. He has had a long story. He became IRS in his fifth attempt. So he gave a lot of civil services state PCS exam, and because of his mother, who is very religious, an astrologer told him that, okay, do not give civil services because it's not meant for you, and either instead run a cosmetic shop. uh, but he defied all the odds, and see, he's here with you as a successful officer, and I'm very sure he'll be able to improve his rank also this year. So, coming back to the session, the topic, it is for 2026 aspirants ideally. Everybody who is preparing for 2026, we plan to help them with this session. It will be a 5 phase strategy. So from now on till May 2026, when your prelims happen, how should you actually plan your schedule or your day, something like that on those lines? And how should you allocate subjects also? So all the subjects that you should be allocating with in those time frame. Also, he'll be giving you a subject-wise strategy of various themes that is there in GS 1, 2, 3, history, geography, disaster management. You all know the topics, right? So how to approach those subjects, what was his learning with respect to those subjects, if there any value addition that you should do beforehand on those lines. So it's a pleasure having you, Mukund. Thank you so much for taking out your time. You can go ahead with the session, please. गुड इवनिंग एवरीवन। सॉरी, मैं लैपटॉप से उतना मुझे स्क्रीन शेयर का आदत नहीं है, तो सॉरी फॉर दैट। तो 5 फेज का स्ट्रैटेजी हम लोग कोशिश कर रहे हैं डिस्कस करने का। देखिए, फेजेस आई थिंक 4, 5, 6, उससे उतना फर्क नहीं पड़ता, बट मोर इम्पोर्टेंट इज कि आप एक शेड्यूल बना के अपना तैयारी करें। बिकॉज होता क्या है, 2000, इज इट ओके इफ आई स्पीक इन इंग्लिश प्लस हिंदी मिक्स, Yeah, या yeah, फिर? absolutely fine. Absolutely fine. तो दरअसल क्या है कि बहुत लंबा अगर हमारे पास टाइम होता है, तो वी टेंड टू गेट लॉस्ट। तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई शेड्यूलिंग इज डन फॉर द, तो बेसिकली द रीजन बिहाइंड दैट इज कि हमारे पास शॉर्ट टारगेट्स रहे, शॉर्ट टर्म हमारा अंडरस्टैंडिंग रहे कि इस 3 महीने में क्या करना है, अगले 3 महीने में क्या करना है, एंड सो ऑन। उससे ये होगा कि हम ओवरऑल नहीं होंगे सिचुएशन से। कई बार हमें ऐसा लगता है कि अरे 1.5 साल है, 1.5 साल में 50 किताबें पढ़नी है,
100 टेस्ट देने हैं, उतना नहीं है। हर 3 महीने का टारगेट बनाएंगे, हर हफ्ते का टारगेट बनाएंगे, हर दिन का टारगेट बनाएंगे, और धीरे धीरे विल ट्राई एंड रीच आवर डेस्टिनेशन। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला जो फेज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं, जर्नी तो सर ने मेरी बताई दी है। तो यहाँ मेजर लर्निंग्स मैं बताने की कोशिश करता हूँ। पहला फेज है नवंबर 2024 से फरवरी 2025। देखिए, आई थिंक मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ से सब लोग बिगिन कर रहे हैं, ये इनका पहला फेज है एकदम, इससे पहले इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। तो किसी भी एग्जाम, ना सिर्फ यूपीएससी में बल्कि किसी और एग्जाम में भी, इट इज इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि एग्जाम में आता क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव हमेशा ये होना चाहिए कि यूपीएससी का सिलेबस पढ़ें आप, प्रीलिम्स का भी और मेंस का भी। प्रीलिम्स का सिलेबस थोड़ा वेग होता है, जहाँ पे सिर्फ टर्म्स मेंशन्ड होते हैं, और मेंस का सिलेबस थोड़ा कीवर्ड वाइज होता है। तो दोनों ही सिलेबस पढ़ें, आइडियली अपने टेबल के आगे चिपका लें और उसको उसको भी याद कर लें। सिलेबस याद करने का पॉइंट ये रहता है कि जब आपको सिलेबस याद रहेगा तो आप चीजें फिल्टर आउट कर पाएंगे। आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई बार इंटरनेशनल रिलेशंस जब लोग पढ़ते हैं, तो होता क्या है कि वो हर चीज का इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ने लगते हैं कि श्रीलंका और चाइना के बीच में क्या हो रहा है। ये रेलेवेंट है, बट ये रेलेवेंट क्यों है? ये रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि हमें इंडिया के कंटेक्स्ट में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यूपीएससी का सिलेबस जो है इंटरनेशनल रिलेशंस का, वो इंडिया सेंटर्ड है। तो हमें न्यूज भी उसी तरीके से पढ़नी है, रैंडम इंटरनेशनल रिलेशंस नहीं पढ़ने हैं। तो वो एक बार जब आपको सिलेबस याद हो जाएगा तो वो फिल्टरिंग अपने आप ऑटोमेटिकली आप कर पाएंगे। तो नंबर 1, सिलेबस अच्छे से पढ़ लें। नंबर 2 है, आप पीवाई क्यूज अच्छे से कर लें। पीवाई क्यूज यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसे करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि आपको समझ में आ जाता है नंबर 1 कि कौन कौन से सब्जेक्ट का क्या क्या रिलेवेंस है, कि किस सब्जेक्ट से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, किस सब्जेक्ट से कम आते हैं, किस सब्जेक्ट से डुएबल और कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं। जैसे मेरी अंडरस्टैंडिंग में पॉलिटी, इकोनॉमी, मॉडर्न हिस्ट्री से थोड़े डुएबल क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि कंसेप्चुअल क्लैरिटी उनमें रिक्वायर्ड होता है। ऑन द अदर हैंड, इन्वायरमेंट या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अगर हम प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखें तो वो थोड़े ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो या तो बहुत डायनामिक होते हैं या फिर बहुत ही ऑब्सक्योर होते हैं। ऑब्सक्योर इन द सेंस कि पूछ सकते हैं कि कौन जानवर बिल खोदता है, किसके गले पे कौन सा निशान है। तो ये चीज आप याद करना, इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे आपको थोड़ा वहीं पे लॉजिक अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये कैटेगराइजेशन तब समझ में आता है जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं। तो नवंबर 2024 फरवरी 2025 में दो चीजें तो आपने ये कर ली, सिलेबस और पीवाईक्यू। नंबर 3 है कि आप टॉपर स्ट्रेटेजीज देख सकते हैं अलग अलग। उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि टॉपर्स खुद क्या रोड मैप चुनते हैं अपना सिलेक्शन के लिए। और अलग अलग किस्म के टॉपर्स होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने एक सवा साल ही तैयारी करी है, कुछ लोगों ने बहुत पहले से तैयारी करी है। तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं उन टॉपर्स को जिनकी जर्नी मोर लेस सिमिलर है टू व्हाट यू वांट। कि आप 1.5 साल की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं किसी ऐसे व्यक्ति को जिसने उस 1.5 साल में प्रिपेयर किया है। अगर आप वर्क के साथ यूपीएससी सिलेक्शन चाह रहे हैं, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी अनिमेश प्रधान है, तो उन्होंने काम करते करते सिलेक्शन लिया, तो आप उनकी जर्नी से ना सिर्फ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, मतलब साथ में प्रैक्टिकल टिप्स भी ले सकते हैं। तो ये 3 महीने, अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो ये 3 महीने हैं जब एक पेड़ काटने वाला अपनी कुल्हाड़ी को शार्पन करता है। इट इज अकिन टू दैट। आप कुछ काटा पीटी एक्चुअली उसमें नहीं कर रहे हैं, बट मोर इम्पोर्टेंटली आप अपने रास्ता बना रहे हैं कि मैं आगे क्या करने वाला हूँ। आप अपनी कुल्हाड़ी शार्पन कर रहे हैं। तो ये हो गए 3 महीने। फेज 2, मार्च 2025 जून 2025। इसमें अगेन ये पीरियड थोड़ा लल का हो सकता है, बट ट्राई एंड मेक श्योर कि आपकी बुक लिस्ट अभी, जो आपने पहले 3 महीने पढ़ा, जो टॉपर स्ट्रेटेजीज पढ़े, उसे अब इम्प्लीमेंट करने का वक्त आ चुका है। तो इसमें हर सब्जेक्ट के लिए आपके पास एक या दो बुक्स होनी चाहिए। बुक लिस्ट में मैं बहुत डिटेल में जाना इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि आई थिंक सबका, मतलब बुक लिस्ट बहुत इजीली अवेलेबल है मार्केट में। तो मेरा तो जनरली यही था कि मैं पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत पढ़ता था, ज्योग्राफी के लिए मैंने एनसीईआरटीज की थी, हिस्ट्री के लिए मैंने मॉडर्न इंडिया में स्पेक्ट्रम पढ़ी थी, एंशियंट मिडीवल क्योंकि मेरा ऑप्शनल था, तो बहुत डिटेल में बुक्स नहीं पढ़ी थी उसके लिए ज़्यादा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए एक येलो बुक बाजीराम की ली थी, सो एंड सो। बट द पॉइंट इज कि वो बुक लिस्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही सोर्स के लिए आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हैं, फिर आप उसका बेयर एक्ट्स पढ़ने के लिए अलग से कुछ जा रहे हैं, फिर कोचिंग भी लगा रहे हैं। जो भी कर रहे हैं उस चीज के साथ स्टिक करें। तो मार्च 2025 जून 2025 इज अबाउट हैविंग अ क्लियर बुक लिस्ट एंड स्टार्टिंग टू स्टडी। इसमें एक एनसीईआरटी रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा आता है, तो मैं उसे भी डाउट टू अभी क्लियर करता हूँ कि जनरली लोगों के मन में सवाल होता है कि एनसीईआरटी
कब पढ़नी है, कैसे पढ़नी है। तो मेरा पर्सनल अंडरस्टैंडिंग ये है कि मैंने एनसीईआरटीज पढ़ी थी, कुछ के नोट्स भी बनाए थे, और मुझे ऐसा लगा था कि एनसीईआरटीज का रेलेवेंस ये है कि अगर जैसे कि आप एकदम किसी नए बैकग्राउंड से हैं, लेट्स से आपका पीसीएम था, आप इंजीनियरिंग से निकल के आए हैं, आर्ट्स का बैकग्राउंड उतना नहीं है, तो एनसीईआरटीज आपको वो रूटीन में लाने की कोशिश कर सकती हैं कि क्या क्या कैसे आर्ट्स वाला साइड कैसे वर्क करता है। बट उनसे नोट्स बनाना इज नॉट अ वेरी स्मार्ट प्रैक्टिस। तो आई वुड रिकमेंड कि एनसीईआरटीज अगर आप पढ़ भी रहे हैं, जहाँ से भी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, 8 से 9 से, तो उन्हें स्पीड रीड करें, एक अंडरस्टैंडिंग उनकी बिल्ड करें, बट उनसे नोट्स ना बनाएं। नोट्स अगर आपको बनाना है तो आगे चल के आप जो अपनी एक्चुअल बुक्स पढ़ेंगे या जो कोचिंग करेंगे उससे ही नोट्स बनाएं। क्योंकि होता क्या है कि हम शुरू में हर चीज के नोट्स बनाने लगते हैं, शुरू में हमें हर चीज इंपॉर्टेंट लगती है, न्यूज़पेपर हो जाए चाहे एनसीईआरटीज हो जाए, बट वो फिर बाद में एक्यूमुलेट होते होते इतना लंबा हो जाता है कि हमारे काम नहीं आ पाता। तो इस चीज को ध्यान रखना जरूरी है। तो एनसीईआरटीज अगर आप जैसे मार्च 2025 जून 2025 तक पढ़ना भी चाहते हैं, तो आई वुड रिकमेंड कि उसका एक फिक्स्ड शेड्यूल बना लें कि इन एक महीने में मैं एनसीईआरटीज कंप्लीट करूंगा, और फिर मैं अपनी एक्चुअल बुक्स पे शिफ्ट कर जाऊंगा। मूविंग ऑन टू फेज नंबर 3, इसमें जुलाई 2025 सितंबर 2025, अब ये वो फेज है जहाँ थोड़ा सा आपको मोमेंटम बिल्ड करना पड़ेगा, जैसे इसमें लिखा ही है। तो स्ट्रैटेजीज फॉर मेंटेनिंग मोमेंटम एंड रिविजन। देखिए, आई एम अज्यूमिंग कि आपका बुक लिस्ट मोरलेस एक बार कंप्लीट हो गया है, जो नहीं हुआ है वो आप जुलाई अगस्त तक कंप्लीट कर लेंगे। अब यहाँ पे आ, ये भी एक लल पीरियड इसलिए होता है क्योंकि जनरली लोगों को लगता है कि उनका प्रीलिम्स का बुक लिस्ट तो कवर हो गया है, ठीक है, और मेंस तो अगले साल होना है। तो अब इस वक्त या तो लोग छुट्टी मना लेते हैं या लोग सो जाते हैं। मेरा पर्सनल तो एक्सपीरियंस यही था कि मैं जुलाई से दिसंबर के बीच में उतना पढ़ाई नहीं करता था, क्योंकि मैं प्री देता था मई जून में, मैं बहुत थक जाता था, फिर मैं अपना हॉलीडेज लेता था, मैं इधर उधर घूमता था और दूसरे एग्जाम की तैयारी करने लगता था, एमपीपीएससी और बाकी यूपीपीएससी वगैरह। तो उससे मुझे यही फील हुआ कि बाद में जब मैं एक्चुअल मेरा प्री क्लियर हो भी जाता था नेक्स्ट साल का, तो मेरा मेंस की प्रिपरेशन इनफ नहीं रहती थी, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो वो 6 महीने यूज कर रहे हैं, अनलाइक मी। तो दिस इज इम्पोर्टेंट कि अब ये जुलाई से जो फेज 3 और फेज 4 है, इन्हें आप ऐसा समझे कि आप सबके बराबर हैं रेस में। अब यहाँ जो तेज भागेगा वो रेस में आगे निकलेगा। तो जुलाई से सितंबर में आइडियली व्हाट यू शुड बी डूइंग इज, आपका प्रीलिम्स का जितना बुक लिस्ट हो चुका है उसको कवर कर लें, जो रह गया है उसे कवर कर लें, साथ में मेंस का थोड़ा सा अप्रोच बनाएं। तो मेंस में यू वुड आइडियली वांट कि स्टार्ट विद द ऑप्शनल, एंड देन एथिक्स, एंड देन एसे, ये 3 प्रायोरिटी ऑर्डर में रहने चाहिए। इसका रीजन ये है कि ऑप्शनल में एक तो वेटेज 500 नंबर का है, बट उससे भी ज्यादा वेरिएबिलिटी ऑफ मार्क्स GS 1 2 3 के मुकाबले ऑप्शनल एथिक्स और एसे में ज्यादा होती है। तो आई विल एक्सप्लेन दिस कि GS 1 2 3 में होता जनरली ये है कि हो सकता है बहुत लोग बहुत सारी मेहनत करें, मैं कम मेहनत करूं, सामने वाला बहुत ज्यादा मेहनत करे, वो टॉप स्कोरर भी होगा GS 1 में, तो उसके मार्क्स 115-120 तक जाएंगे, और मैं एक एवरेज स्कोर भी करता हूं तो मेरे 100-105 तक जाएंगे। तो डिफरेंस वुड बी ऑफ 10 to 15 मार्क्स। बट अगर ऑप्शनल में यही चीज होती है कि मैं बहुत कम पढ़ता हूँ और मेरा काउंटर पार्ट बहुत ज्यादा पढ़ता है, तो उसके 290 से 300 मार्क्स हो सकते हैं उसके रिस्पेक्टिव ऑप्शनल में, मेरे 210 से 220 हो सकते हैं। तो दैट वुड बी अ डिफरेंस ऑफ 70 to 80 मार्क्स। सो हेयर इट इज इंपॉर्टेंट कि आप ऑप्शनल पे फोकस करें, और ऑप्शनल पे फोकस करने का सेंस ये है कि पहले सिलेबस कवर करें। तो जुलाई से सितंबर इज आइडियली वेर यू आर ट्राइंग टू कवर योर ऑप्शनल सिलेबस अच्छे से। जो भी कीवर्ड वाइज ऑप्शनल का सिलेबस अलग आता है यूपीएससी में, अपना ऑप्शनल आप आइडेंटिफाई करें। ऑप्शनल आइडेंटिफाई करने में कुछ लोगों को डाउट होता है, तो वो भी मैं यही क्लियर करना चाहता हूँ कि आ, देखिए, मेरा ये मानना नहीं है कि किसका स्कोरिंग ज्यादा है किसका स्कोरिंग कम है। मेरे अंडरस्टैंडिंग ये है कि ऑप्शनल में नंबर 1 आपको इंटरेस्ट होना चाहिए, क्योंकि आपको वो डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा। तो लेट्स से मैंने हिस्ट्री लिया था, तो उसका रीजन ये था कि मुझे हिस्ट्री अच्छा लगता था पढ़ने में, मतलब आई कुड सिट फॉर 4 to 5 आवर्स एंड स्टडी इट, एंड विदाउट मतलब कोई रिग्रेट नहीं होता था कि क्या ले लिया। नंबर 1 ये। नंबर 2, उसके सोर्सेज आसानी से मिल जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ऑब्सक्योर ऑप्शनल है जिसके आपको सोर्सेज ही नहीं मिल रहे हैं। और बाकी तो फिर यही है कि आप जितना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, जितना अच्छा तैयारी करेंगे, मार्क्स उस पे डिपेंड करेगा। ऐसा नहीं होता है कि किसी ऑप्शन में 300+ नंबर ही मिलते हैं, किसी में नहीं मिलते हैं। आई थिंक वो एक मिथ है, थोड़ा बहुत डिफरेंस 19-20 का हो सकता है, बट मोरलेस ऑप्शनल में अपना इंटरेस्ट और बुक लिस्ट की अवेलेबिलिटी को ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। तो सितंबर तक जैसा कि हम ऑप्शनल कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, डिपेंडिंग ऑन आवर स्पीड, अगर ऑप्शनल कवर हो जाता है तो वी
मूव टू एथिक्स एंड देन ऐसे नहीं हो पाता है तो वी स्टिक टू आर ऑप्शनल. Phase 4, October to Jan. Again, this is the phase where you'll have to balance things. ये जो प्रायोरिटाइजेशन का बात यहाँ पे हो रहा है वो इज बिकॉज जुलाई से अक्टूबर तक का हमको क्लियर था कि हमें मेंस ही करना है. उससे पहले हमें प्री करना था, ये सब हमें क्लियर था. ये एक पीरियड है जहाँ पे आपको थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा चीजों को. बैलेंस करना पड़ेगा इन द सेंस कि यू वुड वांट कि आप प्री का जो भी आपने पढ़ा है वो भूलो भी नहीं, और साथ में आप मेंस का भी आंसर राइटिंग और इम्प्लीमेंटेशन जिसे हम बोलते हैं ना स्टेज की, हमने पढ़ तो लिया बट अब उसको टेस्ट कैसे करें, वो स्टेज ये आइडियल है. ठीक है, तो व्हाट यू कैन डू इज कि आपने अपना ऑप्शनल कवर कर ही लिया है तो आप एक आंसर राइटिंग या तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि उतना आपको कन्विक्शन नहीं आ रहा है आंसर लिखने में. तो टू कम आउट ऑफ दैट इनर्शिया व्हाट यू कैन डू इज यू कैन स्टार्ट राइटिंग पीवाईक्यूज एंड गेट इट पीयर चेक्ड. तो आप किसी को भेज सकते हैं और चेकिंग करवा सकते हैं. तो पीवाईक्यूज लिख सकते हैं. और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी अगेन व्हाट पीपल मेनी टाइम्स हैव अ डाउट इज दैट एक तरीके का तो आंसर राइटिंग ये होता है कि आप पूरा 3 घंटे पेपर लिखें, एक तरीके का ये होता है कि 10 मिनट ही लिखें. तो उसमें से कौन सा किस चीज के लिए होता है ये मुझे पर्सनली डाउट रहता था. तो व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि दोनों का अपना रिलेवेंस है. जो आप 10 मिनट वाला आंसर लिखते हैं एक बार, एक मतलब एक बार बैठे आपने 10 मिनट का एक आंसर लिखा, दैट इज टू ब्रेक आउट ऑफ इनर्शिया बिकॉज 3 घंटे एकदम से लिखने की आदत नहीं बनती है. तो दैट हेल्प्स यू ट्रांजिशन इन टू दैट जोन. तो आप 10 मिनट के आंसर्स लिखना शुरू कर सकते हैं. प्लस आपको इंडिविजुअली रियलाइज हो जाता है कि एक आंसर कितनी देर में आप लिख रहे हैं, 15 मिनट में लिख रहे हैं, उसको 10 मिनट में कैसे लाएं. जब आप वो चीज कैप्चर कर लेते हैं, उसको आप मास्टर कर लेते हैं, तो फिर यू मूव टू द नेक्स्ट स्टेज जहाँ पे आप सेक्शनल उठा रहे हैं, 1 से 1.5 घंटे के टेस्ट दे रहे हैं, आप टाइम लिमिट के साथ अच्छी क्वालिटी प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, देन यू ग्रेजुअली ट्रांजिशन टू द 3 आवर्स. तो आई थिंक आंसर राइटिंग वही करना इंपॉर्टेंट है मेंस के लिए. एट द सेम टाइम जो प्रीलिम्स का है उसमें व्हाट यू वुड वांट इज कि यहाँ पे आप प्रीलिम्स की भी टेस्ट सीरीज करते रहें. तो क्योंकि आपने पढ़ तो लिया ही है, आपने जुलाई और अक्टूबर तक आइडेंटिफाई थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लिया है और आपका एक बार बुक लिस्ट कवर हो गया है. तो अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को या मुझे पर्सनली डाउट हमेशा ये रहता था कि जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ ली मैंने, 2 बार पढ़ ली, एक बार पढ़ लिया फिर रिवीजन भी कर लिया, उसका 2 बार हो गया. अब क्या मैं तीसरी बार पढ़ूं उसे, क्योंकि अभी भी मुझे पूरा तो याद नहीं है लक्ष्मीकांत. तो ये मैंने पहले 2 साल यही गलती की कि मैं तीसरी बार भी पढ़ता था फिर मैं चौथी बार भी पढ़ता था. बट उससे बहुत सारा टाइम निकल जाता है और जो चीज़ हमें याद है वो चीज़ भी हम बार बार पढ़ते रहते हैं. तो उससे बेटर ये रहेगा कि अक्टूबर से जैन पे आप रिवर्स रिवीजन की कोशिश करें. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन रिवर्स रिवीजन इज यू आर अटेम्प्टिंग सेक्शनल टेस्ट. तो लेट्स से आपने पॉलिटी का सेक्शनल टेस्ट लिया, पॉलिटी का लक्ष्मीकांत का फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का वाला सेक्शन आपने टेस्ट किया. कोई अलग अलग कोचिंग्स का टेस्ट सीरीज आता है, आप देखेंगे इसी का भी 50 क्वेश्चन आपने किए फंडामेंटल राइट्स डीपीएसपी के. यू वुड रियलाइज कि आपको कुछ सेक्शंस बड़े अच्छे से याद है, कुछ सेक्शंस आपको अच्छे से याद नहीं है. आप उसके सॉल्यूशंस पढ़ेंगे, हो सकता है बाकी चीजें भी रिवाइज हो जाएं, हो सकता है कुछ डाउट्स फिर भी रह जाएं. तो अब जो डाउट्स रह गए हैं उनको मे भी लक्ष्मीकांत से रेफर करें. तो इससे क्या है कि आपका ओवरलैप नहीं हो रहा है चीजों का, मतलब आपको जो याद था वो तो आपने टेस्ट कर लिया, और जो आपको नहीं याद था सिर्फ वही आपने की सोर्स से जाके पढ़ा, तो आपको टाइम बचेगा. तो ये सेक्शनल टेस्ट आप अक्टूबर से जैन तक देना शुरू कर सकते हैं अलॉन्ग विथ मेंस का आंसर राइटिंग. मूविंग ऑन टू फेज नंबर 5. दिस इज Feb 2026 टू April 2026. दिस इज लास्ट मिनट प्रिपरेशन मॉक टेस्ट फाइन ट्यूनिंग. तो यहाँ पे हम बेसिकली क्या करते हैं कि मेंस का प्रिपरेशन जितना होना था हो गया. अब यहाँ पे कुछ बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि वो मेंस मोड से बाहर नहीं निकल पाते हैं. देखिए फेब तक आपकी आंसर राइटिंग उस लेवल तक नहीं पहुंचेगी जिस लेवल तक पहुंचनी चाहिए, बट वो चीज आपको एक्नॉलेज करनी है और उसको लेके इतना परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि फिर अप्रैल के बाद तुरंत ही मेंस आ जाएगा, फिर 3 महीने का टाइम मिलता है प्री के बाद. तो यू वुड हैव इनफ टाइम टू एक्चुअली कवर थिंग्स दैट यू हैव मिस्ड आउट एंड इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग. तो आइडियली यहाँ तक आपका ऑप्शनल एथिक्स और ऐसे मोरलेस हो जाना चाहिए था. इससे आगे आपने कर लिया है तो वेल एंड गुड, इससे कम भी किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप 3 महीने में कर लेंगे चीजों को. बट यहाँ से इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू मेक श्योर कि आप प्रीलिम्स में ट्रांजिशन कर जाएं, बिकॉज प्रीलिम्स इज गेटिंग वेरी रैंडम इन माय ओपिनियन. बहुत उसमें प्रिडिक्टेबिलिटी कम हो गई है, तो इट इज इम्पोर्टेंट कि आप स्पेसिफिकली उसकी तैयारी करें. तो ये आई थिंक वो टाइम है फेब मार्च अप्रैल का, मे भी थोड़ा बहुत, जिसमें आपको 3.5 महीने मिल गया है और आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं उसकी. तैयारी में क्या क्या होगा,
अब अगेन सेक्शनल टेस्ट आप करते रहेंगे, साथ में आप फुल लेंथ टेस्ट देंगे। अब कुछ लोगों को आई थिंक ये डाउट होता है कि कितने सेक्शनल टेस्ट देने हैं, कितने फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। तो मैं अपना अंडरस्टैंडिंग शेयर कर देता हूँ। आई थिंक सेक्शनल टेस्ट होते हैं आपके रिवर्स रिवीजन के लिए, तो वो ज्यादा होने चाहिए। तो आइडियली 3 से 4 टेस्ट हर पॉलिटी के, हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के 3 से 4 टेस्ट आप देते रहें। फुल लेंथ टेस्ट मेरी अंडरस्टैंडिंग में होता है सिमुलेशन के पर्सपेक्टिव से। उसमें आपको रिवर्स रिवीजन का उतना वो नहीं होता है रिलेवेंस। उसमें रिलेवेंस ये है कि आप 100 क्वेश्चन अलग अलग सब्जेक्ट के कैसे उस वक्त कर पा रहे हैं। तो फुल एंड टेस्ट की वैल्यू वो है। तो वो 5 से 10 के बीच में अगर आप दे रहे हैं ओवरऑल, तो वो मेरे हिसाब से मोर और लेस इनफ है। एक तो ये हो गया। इसके अलावा मॉक टेस्ट के साथ साथ एक्चुअल सिमुलेशन भी इम्पोर्टेंट है। क्या होता है कि जैसे मई का एग्जाम में, अगर 2000 मई के महीने में एग्जाम होगा 2026 में, बहुत गर्मी पड़ेगी, गवर्नमेंट सेंटर होगा कोई सा जहाँ पे हो सकता है लाइट चली जाए, पंखा नहीं चले या टेबल ऊपर नीचे हो। तो ये सब भी आई थिंक अगर आप सिमुलेट कर लेते हैं तो फिर आप थोड़ा बुलेट प्रूफ हो जाते हैं, आप अपने फेलियर के चांसेस कम करते हैं। बेसिकली जो लक का एलिमेंट है यूपीएससी में, आई थिंक इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर हार्ड वर्क। तो अगर आप जितना सिमुलेट करेंगे, जितना हार्ड वर्क करेंगे, उतना आपको लक पे कम रिलाई करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा, कोई भी मुझसे पूछता है कि लक का कितना रिलेवेंस है यूपीएससी में, तो आई यूजुअली से कि अगर आप बिना पढ़े एग्जाम में जा रहे हो प्रीलिम्स में, तो भी आपकी पॉसिबिलिटी है क्लियर करने की प्री, बट फिर आपको लक पे ऑलमोस्ट 100% रिलाई करना पड़ेगा। ठीक है। और अगर आप बहुत ज्यादा पढ़ के जा रहे हो, आप बहुत ज्यादा प्लानिंग करके जा रहे हो, तो भी पॉसिबिलिटी है सिलेक्शन की, बट आपको लक पे कम रिलाई करना पड़ेगा। तो लक पे रिलायंस कम करने का ही है ये सारा का सारा जो भी जद्दोजहद है। तो सिमुलेशन आई थिंक इज अ पार्ट ऑफ दैट, वेयर यू ट्राइंग टू मेक श्योर कि आपको हीट स्ट्रोक ना आ जाए उस दिन, आपको टेबल उबड़ खाबड़ हो, या कुछ कोई आप पीछे से बात कर रहे हैं तो आपका ध्यान ना बढ़ जाए। तो वो सब चीजें आप घर पे सिमुलेट करें। या आजकल तो अगेन कोचिंग जो है वो ये चीज भी प्रोवाइड कर रही हैं कि वो लोग एक्चुअल गवर्नमेंट सेंटर्स पे टेस्ट करवा देते हैं। तो उनमें से किसी में एक बार अप्लाई कर दें, उसमें बैठ जाएं जाके, और मार्क्स से परेशान ना हो। मार्क्स का उतना रेलेवेंस नहीं है ना मॉक टेस्ट में ना सिमुलेशन में, क्योंकि अगर आप 150 नंबर भी स्कोर कर रहे हैं 200 में से, तो भी आपका प्री में सिलेक्शन गारंटीड नहीं है। बट अगर आप हर टेस्ट को पढ़ रहे हैं अच्छे से, उसके सॉल्यूशंस को पढ़ रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि कौन से मैंने ढंग से किए, कौन से नहीं किए, अपनी अपनी गलतियों से सीख रहे हैं, तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, भले ही आप 70-80 ही स्कोर क्यों ना कर रहे हो हर टेस्ट में, क्योंकि आप सीखते जा रहे हैं, तो आपको एक्चुअल में स्कोर इंप्रूवमेंट होने की पॉसिबिलिटी रहेगी। आई थिंक फेज 5 यही था। मोरलेस फेज का जो मेरा अंडरस्टैंडिंग था कैसे शेड्यूलिंग करना होता है 1.5 साल के पीरियड में, वो मैंने शेयर करने की कोशिश की है। आई थिंक Great. यहाँ इस पार्ट में कोई डाउट होता है, वुड लव टू Yeah, डिस्कस so दैट। we'll take all the questions in the end. When you tell them about the toolkit or the way to approach these subjects, you also tell them, if possible, when they should be allocating such subjects. कब ये पढ़ लें, कब ये पढ़ लें, अगर ये भी कर पाए आप तो वो बहुत बेनिफिशियल रहेगा आई गेस। ठीक है। नहीं तो आप सिर्फ स्ट्रैटेजी भी बता सकते हैं, वट एवर इज योर कॉल। ठीक है। तो ठीक है, अब हम फिर जीएस पेपर्स में घुस जाते हैं। जैसे सर ने एलोकेशन ऑफ सब्जेक्ट्स बोला, तो मैं उसको वही बोलूंगा, सिंपल प्रायोरिटी ऑर्डर में कैसे कौन सा करना है। मेरा पर्सनल प्रायोरिटी ऑर्डर ये था। आई थिंक ये प्रायोरिटी ऑर्डर थोड़ा सा ट्रांजिशन करता रहेगा बेस्ड ऑन क्या यूपीएससी का पैटर्न चल रहा है। तो दिस इज बेस्ड ऑन व्हाट आई करेंटली अंडरस्टैंड। जीएस 4 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी। अगर जीएस में ही हम डिस्कस कर रहे हैं तो जीएस 4 सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, सिंपली बिकॉज उसमें स्कोर जो है 130 से 140 चला जाता है, और एवरेज स्कोर 100 तक ही रहता है, तो 30 से 40 का वेरिएबिलिटी है मार्क्स का। प्लस एथिक्स का सिलेबस छोटा है, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, आसानी से कवर किया जा सकता है। तीसरी चीज ये है कि बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है, मतलब किसी का बैकग्राउंड नहीं भी है तो भी आपको ये चीज समझने के लिए तो इतना नहीं चाहिए कुछ कि सही क्या है गलत क्या है। बेसिकली एथिक्स इज ट्राइंग टू टीच अस दैट इज दैट ओनली। तो सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे जीएस 4 को कंप्लीट करें, अच्छे से कंप्लीट करें, उसके टेस्ट दें, उसमें वैल्यू एडिशन करना है अगर किसी में, तो सबसे पहले उसकी प्रायोरिटी को रखें। देन कम्स आई थिंक जीएस 1 या जीएस 2। अब वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन दोनों में भी मार्क्स रिलेटिवली 120-25 तक चले जाते हैं अगर कोई अच्छा हाई स्कोर करता है तो। और आखिरी में मैं प्रायोरिटी पे रखूंगा जीएस 3 को, सिंपली बिकॉज ना तो इसमें मार्क्स उतने मिल रहे हैं अभी, टॉप स्कोरर भी 95 तक स्कोर करता है, और इसका सिलेबस इज लाइक क्रेजी बिग। आई डोंट थिंक कि कोई भी उसको एक्चुअली कवर कर पाता है सिलेबस को। उसमें ऑलमोस्ट दुनिया की हर चीज है, अगर मैं अभी यहाँ पे भी लिखा होगा
सिलेबस इसमें तो बहुत छोटा सा लिखा है, इकोनॉमी एनवायरनमेंट साइंस एंड टेक इंटरनल सिक्योरिटी, बट इसमें और भी चीजें होती हैं और बहुत ही इंट्रिकेट है ये। तो GS3 आई थिंक प्रायोरिटी में आखिरी में, तो अगर आपके पास 3 महीने हैं तो वो आपको खुद ही कस्टमाइज करना है, बट GS3 आई वुड सजेस्ट कि उसमें इतना टाइम देना है कि छोड़ना है कुछ नहीं है, बट ऊपर ऊपर सतही लेवल पे कवर करना है, फिर उसके बाद वैल्यू एडिशन करना है, and बाकी चीजों को थोड़ा प्रायोरिटी ज्यादा देना है। तो आई वुड स्टार्ट विद GS1, जिसमें हिस्ट्री, सोसाइटी, ज्योग्राफी एंड डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। अ, इसके लिए अगर एक बुक लिस्ट मैं आपको बताऊं, तो मेरा पर्सनल तो ये है कि हिस्ट्री के लिए तो क्योंकि मेरा खुद का ऑप्शनल था, तो कुछ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल मैं नहीं बता पाऊंगा, मैंने अपने ऑप्शनल नोट से ही पढ़ा था। सोसाइटी के लिए मैंने स्मृति मैम है एक, उनके नोट्स मैंने रेफर किए थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। इसके अलावा सोसाइटी में अगेन मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि आजकल बड़े कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो नोट्स से ज्यादा रिलेवेंस आई थिंक ये है कि आप उसके क्वेश्चंस को पढ़ें, सिलेबस को अच्छे से पढ़ें, सिलेबस कीवर्ड वाइज आपके पास सारे के सारे नोट्स हों, और आप आंसर राइटिंग अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो क्वेश्चन आते हैं 3 3 लाइन के जहाँ पे आपको बहुत सोचने पे मजबूर कर देता है वो क्वेश्चन, और उसको तुरंत ऐसे ड्राफ्ट बना के नहीं लिखा जा सकता, जैसे कि आई वुड से ज्योग्राफी और हिस्ट्री में एक बार को वो चीज़ की जा सकती है। तो इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट कि आप उसकी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें ताकि आप उतना जल्दी सोच पाएं। और इसके अलावा कुछ ड्राफ्ट्स भी बनाए जाते हैं आंसर राइटिंग के, जो कि सोसाइटी में भी आई थिंक हेल्प कर सकते हैं। फिर आएगा अपना ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट। अच्छी बात है कि उन्होंने डिजास्टर मैनेजमेंट यहीं पे मेंशन किया हुआ है, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्चुअली इसमें पूछा जाता है। तो ये मेरा एक मिसकंसेप्शन था कि ज्योग्राफी मतलब सिर्फ ज्योग्राफी और डिजास्टर मैनेजमेंट GS3 के लिए पढ़ूंगा, बट उसमें फिर क्लाउड बस्ट पूछने लगे वो लोग, फिर वो लोग अर्थक्वेक पूछने लगे, ये सब डिजास्टर मैनेजमेंट का हिस्सा है। तो आपको वो क्लब करके पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं होना है कि आपको GS3 के रिवीजन के टाइम सिर्फ GS3 पढ़ रहे हैं, पेपर 1 में भी आएगा डिजास्टर मैनेजमेंट। ज्योग्राफी के लिए मैंने PMFIS करके है, उनके नोट्स पढ़े थे, वो काफी अच्छे हैं। तो बुक लिस्ट तो ये हो गई। इसके अलावा आंसर राइटिंग के ड्राफ्ट्स मैं रिकमेंड कर सकता हूँ, जो मैं खुद यूज करता था। ये आई थिंक मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, तो सर को मैं बता दूंगा, वो शेयर कर देंगे, या फिर मैं ये ड्राफ्ट्स भी शेयर कर दूंगा। तो स्टार्टिंग ऑफ आर्ट एंड कल्चर की अगर हम बात करें, तो देखिए हर आंसर का बेसिकली आप इंट्रोडक्शन, बॉडी और कंक्लूजन लिखते हैं। तो ये ड्राफ्ट भी उसी के बेसिस पे है कि इंट्रोडक्शन हम कैसे लिखें। बेसिकली क्या होता है, जब 7 मिनट का टाइम है 10 मार्कर के लिए, आपको तुरंत स्ट्राइक नहीं करता है कि क्या लिखूं, बट अगर आपके पास एक ड्राफ्ट है कि मुझे हिस्ट्री के क्वेश्चंस में रिलेवेंस ऑफ टाइम पीरियड की बात करनी है या टाइम पीरियड की बात करनी है, तो वो फिर क्लियर हो जाएगा, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप सीधा उसी में से उठा के लिखोगे, तो ड्राफ्ट बनाने का टाइम जो है बच जाता है। तो अगर आर्ट एंड कल्चर की बात करें, तो इसमें वी कैन स्टार्ट विथ डिस्कसिंग द रेलेवेंस ऑफ द आर्ट मेंशन और द पेट्रन्स मेंशन। तो दिस इज बेस्ड ऑन द थिंग कि जैसे कि अभी क्वेश्चन आया था कि पाला आर्ट कैसी है, गुप्ता आर्ट कैसी है, इस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं पूछे गए हैं पिछले 2 3 साल में। गुप्ता आर्ट का, टेम्पल आर्ट गुप्तास का, या पालास का केव आर्किटेक्चर, ये क्वेश्चंस हैं। तो इसमें आप इंट्रोडक्शन कैसे कर सकते हो कि गुप्ता आर्ट या गुप्ता पीरियड इज द गोल्डन एज ऑफ इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो एक जेनरिक से इंट्रोडक्शन है जिसमें आपने गुप्ता पीरियड का रिलेवेंस मेंशन कर दिया। ऑफ कोर्स यू कैन गो टू द नेक्स्ट लेवल, बट आई थिंक ड्राफ्ट्स आर इम्पोर्टेंट, बिकॉज हर जो 20 क्वेश्चन है उसमें सब में एक फ्लावरी, एक वेल प्रिपेयर्ड इंट्रोडक्शन नहीं लिख पाओगे। तो ये ड्राफ्ट्स तब ज्यादा यूजफुल हैं जब आपके दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा है कि मैं लिखूं क्या। तो यू रिलाई टू फॉर द ड्राफ्ट एंड यू राइट अ जेनेरिक डिसेंट इंट्रोडक्शन जिसमें ठीक ठाक मार्क्स मिल जाएं। then what you can also do is you can use a flowchart or a map to describe art that has been asked. So for example, again जैसे गुप्ताज का टेम्पल आर्किटेक्चर अगर पूछा गया है क्वेश्चन में, तो what I can do is I can simply draw a map of India. I can मेंशन साइट्स कि ये नचना कुठारा मंदिर है, ये गुप्तास का और कोई सा मंदिर है, ये मैप में मैंने 3 4 बना दिया, तो इट प्रेजेंट्स अ गुड व्यू टू द एग्जामिनर कि इसको पता है सारे। और हो सकता है आपको कहीं और मेंशन करने का मौका ही ना मिले गुप्ता आर्ट का, तो आपने वो मैप में साइड में इंट्रोडक्शन के जस्ट नीचे बना दिया। मूविंग ऑन, फिर बॉडी में तो यू जस्ट सिंपली गो क्रोनोलॉजिकली, और किन पर्सपेक्टिव में आपको सोचना है। आई थिंक मैं सोचता था कि अगर जैसे कि सिंपली ये पूछा गया है कि गुप्ताज के टाइम की आर्ट को बताएं, उसका विवरण करें, तो उसमें आई वुड थिंक कि आर्किटेक्चर क्या था, पेंटिंग क्या थी उस टाइम की, उस टाइम का डांसेस कैसे थे, उस टाइम का थिएटर कैसा था, उस टाइम का लिटरेचर कैसा था,
उस टाइम के स्कल्पचर्स कैसे थे, ठीक है, ये मोरलेस मैं समझने की कोशिश करूंगा, इसके पॉइंटर्स में बनाने की कोशिश करूंगा। बट अगेन ड्राफ्ट लिखते टाइम ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि इट इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द रेलिवेंस ऑफ क्वेश्चन, रेलिवेंस ऑफ द ड्राफ्ट एंड द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। सो फॉर एग्जाम्पल अगर पूछा गया है कि गुप्ता टेम्पल आर्ट क्या है, और आप लिटरेचर और डांसेस लिख रहे हैं, तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा। तो ड्राफ्ट का एक लिमिटेड रेलेवेंस है, क्वेश्चन को पढ़ना सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी है, अगर वहां पे फिट हो रहा है वो ड्राफ्ट तभी उसे अप्लाई करना है। तो ये हमने कर दिया। कुछ अगर लिमिटेशंस आपको लग रहा है आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड है, तो आप उसका नीचे फ्लो चार्ट बना सकते हैं अलग, ये भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट ही है। और फिर वे फॉरवर्ड में मैं बेसिकली या तो लीगल चीजें लिख देता था, जैसे कि AMASR एक्ट है 1958 का, एक एंटीक्विटीज एक्ट है 1972 का, ये लीगल तरीके हैं जिससे हम आर्ट एंड कल्चर को बचा सकते हैं। स्कीम्स हैं, राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव एक्सेट्रा। टेक्नोलॉजिकल तरीके हैं, डिजिटल डेटाबेस बनाने का आर्ट्स का। तो ये भी एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है, हो सकता है क्वेश्चन में नहीं पूछा गया होगा, बट व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली ड्रॉ फ्लो चार्ट जिसमें आप ये तीन चीजें मेंशन कर रहे हैं, तो इट गिव्स यू एन एज, थोड़ा मल्टी डायमेंशनल बना देता है आपके आंसर को, कि आपने वे फॉरवर्ड भी डिस्कस कर लिया। फिर कंक्लूजन में व्हाट आई यूज्ड टू डू इज mention DPSP, Article 49 and Article 51A. 49 is about protection of monuments and heritage, and 51A is about protection of heritage. That is, I think, fundamental duties. तो बेसिकली कंक्लूजन में ये लिख देता था मैं कि गुप्ता आर्ट को प्रोटेक्ट करने से आर्टिकल 49 अपहोल्ड होगा, या 51A जो है वो उसकी वैल्यूज को हम प्रोटेक्ट करेंगे। तो ये कंक्लूजन हो गया आई थिंक। मॉडर्न हिस्ट्री में भी सिमिलर है चीज, कि अगर जैसे कोई मूवमेंट पूछा गया है या कोई रिवॉल्ट पूछा गया है, तो आप उसका सिग्निफिकेंस बता सकते हो। कोई पर्सनैलिटी पूछी गई है, तो आप उनका सिग्निफिकेंस, उनका रिलेवेंस इंट्रोडक्शन में बता सकते हो। फिर आप मैप भी बना सकते हो अगेन, जैसे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, तो आप अलग अलग जगह का बता सकते हो कि कहाँ कहाँ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था, पूरे इंडिया में मैप बना सकते हो, फ्लो चार्ट भी बना सकते हो। मूविंग ऑन, फिर आप बॉडी में बेसिकली अगेन क्वेश्चन का डिमांड एड्रेस करोगे। आप बेसिकली इन टर्म्स में सोच सकते हो कि जैसे कि कोई मूवमेंट पूछा गया है या कोई व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन, क्योंकि जनरली ऐसे ही होते हैं कि या तो गांधी जी का कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में बात की जाए, या लॉर्ड कर्जन के बारे में एक बार क्वेश्चन आया था, तो ये सब पर्सनैलिटी बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। नंबर दो, मूवमेंट टाइप क्वेश्चन आ सकते हैं कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का क्या यूटिलिटी था, क्विट इंडिया मूवमेंट का क्या वो था। तो जब आप बॉडी लिख रहे होंगे तो यू कैन थिंक इन द टर्म्स ऑफ कि उस व्यक्ति का या उस मूवमेंट का क्या इम्पैक्ट था, उस व्यक्ति का या उस मूवमेंट के जो एक्शंस हैं उनका क्या कॉन्सिक्वेंसेस था, और क्या कोई लिमिटेशंस थे। जैसे अगर लॉर्ड कर्जन है तो उनकी कुछ अच्छी पॉलिसीज हैं, तो कुछ नेगेटिव पॉलिसीज है, नेगेटिव पॉलिसीज लिमिटेशंस में आ जाएंगी। तो ये आप नए डायमेंशन ऐड करने की कोशिश कर सकते हो अगेन टू मेक योर आंसर मल्टी डायमेंशनल। मॉडर्न हिस्ट्री में कोई स्पेसिफिक वे फॉरवर्ड नहीं आता है, उसका मौका नहीं मिलता है, तो आप कंक्लूजन में अगेन यू कैन लिंक इट टू द फ्यूचर इवेंट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन सिंपली मेंशन कि इट हेल्प अस अचीव इंडिपेंडेंस इन 1947। या अगर आप बहुत स्पेसिफिक चाह रहे हो तो आप फिर ये बोल दो कि इट हेल्प इन ब्रिंगिंग क्रिप्स मिशन एंड कैबिनेट मिशन एंड सो ऑन। तो यू आर ट्राइंग टू लिंक इट टू द फ्यूचर इवेंट टू प्रोवाइड अ थोड़ा सा होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी सिमिलर ही स्ट्रक्चर रहेगा जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया मॉडर्न के लिए। ज्योग्राफी की बात, अच्छा, वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस से रिलेटेड मेरा एक एडवाइस ये भी है, इनसे क्वेश्चन जो है या तो एक आता है या नहीं आता है, जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है। तो जैसे मैंने सर को भी बताया था शायद लास्ट टाइम, कि इट इज इम्पोर्टेंट कि किस टॉपिक का कितना रेलेवेंस है वो समझ के आप पढ़ाई शुरू करें। वर्ल्ड हिस्ट्री और पोस्ट इंडिपेंडेंस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उतना टाइम भी नहीं देना है। किसी के या तो टॉपर के नोट्स आप उठा के पढ़ लें, या किसी कोचिंग का कंपाइलेशन पढ़ लें, और बेसिक बेसिक जो चांसेस हैं जिनके आने के, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, बेसिक चीजें आ सकती हैं, तो उनको कवर कर ले, रशियन रेवोल्यूशन कर लें, वर्ल्ड हिस्ट्री में ये सब हो जाएगा। और भी चीजें हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस में भी, कुछ कुछ 7-8 थीम्स हैं, वो एक बेसिक लेवल का कंप्लीट कर लें। और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो छोड़ के भी जा सकते हैं, गैम्बल ले सकते हैं, बट फिर वही है, फिर एक क्वेश्चन का रिस्क आपको रहेगा। तो आइडियली व्हाट यू शुड डू इज छोड़ के कुछ नहीं जाना है, बट बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है इन दोनों को। ज्योग्राफी की बात करें, ज्योग्राफी में अगर फिनोमेना बेस्ड है, तो आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्लाउड बर्स्ट है, तो क्लाउड बर्स्ट की आईएमडी की एक फिक्स डेफिनेशन है, आप उसको लिख सकते हो, आप उसके साथ एक डायग्राम बना सकते हो। अगर क्लाइमेट चेंज बेस्ड क्वेश्चन है ज्योग्राफी के लिए, तो आप बेसिकली कोई डाटा डेटा मेंशन कर सकते हो कि आईपीसीसी की रिपोर्ट जो है वो ये कह रही है कि वाटर क्राइसिस हो रहा है। इसके साथ आप मैप बना सकते हो, यहाँ पे भी मैप बना
एक्चुअली ज्योग्राफी में मैप और डायग्राम्स का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा हिस्ट्री हिस्ट्री में नहीं भी बनाओ तो चल जाएगा, बट ज्योग्राफी का एक आई थिंक की एलिमेंट है कि आप डायग्राम्स और मैप्स के थ्रू सारी चीजें बताएं। तो क्लाउड बस्ट है तो क्लाउड बस्ट का डायग्राम भी एक बना के रखें। अगर मैप है तो मतलब मैप तो जहां तक है बनाते ही रहे मोस्टली, उससे एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा। और डायग्राम्स की जहां तक बात आती है, तो एक प्रैक्टिकल टिप आई थिंक ये है कि सिर्फ डायग्राम देखने से कुछ नहीं होता है। अगर आप बुक में डायग्राम 4 बार भी देख लोगे और आपको एक्चुअल पेपर में बनाने को बोलूंगा तो वो नहीं बन पाएगा। तो व्हाट यू शुड डू इज, यू शुड, जैसे बुक में अगर कोई डायग्राम है, जैसे पीएमएफआईएस नोट्स में रहता था अच्छा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम, मैं उसका एक सिंपलिस्टिक वर्जन उसी के बाजू में अपने हाथों से बनाता था। तो वो थोड़ा सा रेप्लिकेबल रहता था, प्लस मैं थोड़ा प्रैक्टिस मेरा उधर ही हो गया एक दो बार की मैं अच्छा ऐसे बनाना है। सेम गोज फॉर इंडियन वर्ल्ड मैप। आप बेसिकली 5-10 सेकंड में आप बनाने की आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, इंडिया मैप को भी वर्ल्ड मैप को भी, जितना सिंपलिस्टिक वे में हो सके, जितना छोटे वे में हो सके। तो मैप से आगे हम बढ़ते हैं। जब बॉडी आएगी, तो अगर फिनोमेना बेस्ड क्वेश्चन है अगेन, जैसे कोई क्लाउड बस्ट है या कुछ और है, तो आ, अब फिर वो डिपेंड करेगा पूछा क्या है क्वेश्चन में, बट इन जनरल उससे रिलेटेड फैक्टर्स क्या हैं। फैक्टर्स क्या हो सकते हैं जैसे क्लाउड बस्ट से रिलेटेड, तो वो एंथ्रोपोजेनिक हो सकता है, नेचुरल हो सकता है। कुछ नेचुरल कारण हो सकते हैं, कुछ ह्यूमन बेस्ड हो सकते हैं। फिर उनका इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट में भी अगर आप सोचे तो पेस्टल अप्रोच आप सोच सकते हो। पेस्टल इज पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल एंड बेसिकली टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंट, लीगल। तो जो जो इम्पैक्ट पड़ते हैं इस फिनोमेना के, वो आप मेंशन कर सकते हो इम्पैक्ट में। अ, इसके बाद फिर आप स्टेप्स टेकन आप मेंशन कर सकते हो कि क्या क्या स्टेप लिए गए हैं ऐसे फिनोमिना को रोकने के लिए। सिमिलर ही रहेगा क्लाइमेट चेंज के लिए भी, बॉडी का स्ट्रक्चर। इसके बाद आता है वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में आप अगर स्ट्रक्चर करना चाह रहे हो अपने कंटेंट को, तो व्हाट इज अ गुड प्रैक्टिस इज थिंक ऑन द टर्म्स ऑफ नेशनल एफर्ट्स क्या है, इंटरनेशनल एफर्ट्स क्या है। इसके अलावा सेकेंड एआरसी ने कुछ मेंशन किया है, क्योंकि सेकेंड एआरसी का भी एक रिपोर्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्पेसिफिकली। कोई कमिटी है उसने कुछ रिकमेंड किया है क्या, कोई बेस्ट प्रैक्टिस आपको याद आ रहा है किसी देश का, जापान में फ्लड मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है अगर लेट्स से, तो वो आपको याद आ रहा है, आप उसको लिख दो। ये सब वे फॉरवर्ड में अगेन फ्लो चार्ट फॉर्म में या पॉइंट वाइज आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में मेरा एक्सपीरियंस ये है कि थोड़ा आजकल स्लोगन वाली चीजें ज्यादा आई थिंक वाइब कर रही है एग्जामिनर के साथ। तो इसमें आप बेसिकली डिजास्टर मैनेजमेंट में अगर कोई ऑनरेबल पीएम का कोट है तो आप उसको मेंशन कर सकते हो। और ये सब चीजों में अप्लाई होगा, ये कोट वाला, ये स्लोगन वाला कंक्लूजन अगर आप लिख पा रहे हो तो वेल एंड गुड है। बट अगर वो नहीं याद आता है, तो सिंपली आप सेंडाई फ्रेमवर्क है एक डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, उससे लिंक कर सकते हो कि बाय अचीविंग रिड्यूस क्लाउड बर्स्ट वी कैन अचीव द सेंडाई फ्रेमवर्क दैट वी हैव डेजिग्नेटेड फॉर आवरसेल्व्स। ठीक है। डीपीएसपी में आर्टिकल 48 है। और एक इंडिया विजन टू 2047 में लिखता था कि 2047 तक हम अगर एक चाह रहे हैं स्वर्णिम भारत, तो उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट जो है मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो ये हो गया ज्योग्राफी। डिजास्टर मैनेजमेंट का भी हमने डिस्कस कर ही लिया है मोरलेस। फिर सोसाइटी की बात करें, सोसाइटी में इंट्रोडक्शन में यू कैन अगेन डिफाइन द फिनोमेन दैट इज आस्क्ड, और यू कैन मेंशन द रिपोर्ट और स्टैट्स रिलेटेड टू इट। सो फॉर एग्जांपल अगर चाइल्ड सेक्स रेशो से कुछ रिलेटेड है कि क्यों वो स्क्यूड है, या पेट्रियार्की से रिलेटेड कुछ इशू है, औरतों के खिलाफ जो हो रहा है उससे रिलेटेड है, तो आप उस फिनोमिनन को एक्सप्लेन कर सकते हो। किसी सोशोलॉजिस्ट का आपके पास डेफिनेशन है या कुछ क्लियर कट मेंशन है तो आप वो लिख सकते हो। कुछ एक टर्म्स में ही बनाना आसान है, जैसे ग्लोबलाइजेशन की डेफिनेशन आपको आसानी से कहीं पे भी मिल जाएगी अच्छी से, तो वो याद होनी चाहिए। कुछ नया फिनोमिना आ जाता है तो आपको वही बनाना पड़ेगा। अ, फिर फ्लो चार्ट बना सकते हो नॉन कोर पार्ट के लिए। आई थिंक व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज कि इंट्रोडक्शन में आप सारी चीजें नहीं लिख सकते हो, जैसे कि ग्लोबलाइजेशन ही है, तो अब ग्लोबलाइजेशन में आपने 3 लाइन में डेफिनेशन लिख दिया, बट आपको ग्लोबलाइजेशन का कुछ डेटा भी आता है और कुछ पूछा भी है कि इंडिया के कंटेक्स में ग्लोबलाइजेशन कैसा रहा है, तो यू कांट एग्जैक्टली राइट इट इन इंट्रोडक्शन एज वेल। तो आप फिर उस कंटेंट को नॉन कोर पार्ट में फ्लो चार्ट की तरह बना सकते हो कि इंडिया के लिए वो कैसा रहा है, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, आपने ऐसा एक फ्लो चार्ट इंट्रोडक्शन के नीचे बना दिया। तो दैट हेल्प्स। बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि कई बार क्वेश्चन 2 पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है, ग्लोबलाइजेशन क्या क्या है प्लस दूसरा पार्ट कुछ हो सकता है उसका। तो जो सब पार्ट है वो आप फ्लो चार्ट में मेंशन कर सकते हो, और जो कोर पार्ट है उसके लिए आप शुरू की डेफिनेशन यूज कर सकते हो। मूविंग ऑन, फिर बॉडी में वी कैन बेसिकली थिंक इन द
टर्म्स ऑफ हमारी इंडियन सोसाइटी के फीचर्स क्या क्या हैं। तो एक तो यही है कि हमारा डाइवर्सिटी है, अलग अलग तरीके की रिलीजन हो जाए, चाहे रीजनल हो जाए, चाहे लिंग्विस्टिक हो जाए, अलग अलग किस्म की डाइवर्सिटी है। तो उस टर्म्स में सोचो, अगर डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है तो अगर इंडियन फैमिली की बात हो रही है या इंडियन सोसाइटी की बात हो रही है इन जनरल, तो आप सोच सकते हो कि इंडिया में क्या क्या है फीचर्स। कास्ट एक फीचर है, इंडिया में रिलीजन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, क्लास, इकोनॉमिक क्लास एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, इंडिया में मिडिल क्लास अलग है, ट्राइबलिज्म हमारे यहाँ है एक अलग फीचर यूनिक, विलेज लाइफ हमारी बड़ी यूनिक है। तो इन टर्म्स में आप थोड़ा सोचने की कोशिश कर सकते हो आप लिखते वक्त। फिर आप स्टेक होल्डर वाइज भी सोच सकते हो, अगर कोई फिनोमिनन है तो जैसे ग्लोबलाइजेशन ही अगेन सबसे आसान एग्जांपल, तो आप सोच सकते हो कि ग्लोबलाइजेशन ने कैसे इंडिविजुअल लेवल पे लोगों को अफेक्ट किया, कैसे फैमिली लेवल पे अफेक्ट किया, कैसे मैरिजेस को अफेक्ट किया, कैसे जेंडर लेवल पे अफेक्ट किया, और कैसे एज अ नेशन हमको अफेक्ट किया है। तो ये दो टर्म्स में आप जनरली सोच सकते हैं सोसाइटी के आंसर्स लिखते वक्त। फिर वे फॉरवर्ड में अगेन आपको जो कंटेंट है आपका वो आप ऐसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो कि लीगल मेजर्स क्या लिए गए हैं, कोई जुडिशरी का व्यू अगर है, क्योंकि जुडिशरी का काफी व्यू रहता है इन चीजों से रिलेटेड कुछ आते तो आप वो लिख सकते हो। आ, कोई गवर्नमेंट स्कीम्स हैं इससे रिलेटेड, कोई इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं, कोई बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, तो ये सब आप मेंशन कर सकते हैं। कंक्लूजन में अगेन आप कोई स्लोगन यूज कर सकते हो, सबका साथ सबका विकास इज अ बेसिक स्लोगन फॉर इट। बाकी एसडीजी गोल्स जो हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, वो मोरलेस सोशल जो भी इश्यूज हैं उनसे लिंक्ड हैं काफी सारे, तो वहां पे आप कुछ पुट कर सकते हो। मूविंग ऑन टू GS2, दिस इज पॉलिटी, गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस। तो पॉलिटी में थोड़ा वेग क्वेश्चंस आते हैं, मेरा अंडरस्टैंडिंग तो ये है। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप क्वेश्चंस को पार्ट्स में ब्रेक करें और कोर डिमांड पे फोकस करें। इंट्रोडक्शन यहाँ पे हमेशा मैं तो यूजुअली आर्टिकल से करता हूँ, मैं तो जैसे इलेक्शन कमीशन का क्वेश्चन है तो मैं आर्टिकल 324 लिखूंगा सिंपल, कि आर्टिकल 324 प्रोवाइड्स फॉर इलेक्शन कमीशन विच कंडक्ट्स इलेक्शंस एंड सो ऑन। ठीक है। कोई कमेटी का व्यू आपके पास है किसी चीज से, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज के बारे में है तो उससे रिलेटेड कोई कमेटी है, उसका कोई व्यू है कि इट हैड रिकमेंडेड AIGS, ये इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। कोई जुडिशियल केस लॉ है तो वो आप डेफिनेटली मेंशन कर सकते हो। आई थिंक उसका काफी वैल्यू है, टॉपर आंसर कॉपीज पढ़ के मुझे ये रियलाइज हुआ, बाकियों की भी, कि जैसे पोल्यूशन है तो पोल्यूशन से रिलेटेड काफी सारे केसेस हैं, तो कोई एक केस आप लिख दो जहाँ पे ऐसा मेंशनड है कि क्लाइमेट चेंज इज अफेक्टिंग एंड सो ऑन, इस केस में मेंशनड है, तो वो भी इज अ गुड इंट्रोडक्शन फॉर पॉलिटी। बॉडी में यू विल सिंपली ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स, जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है। वे फॉरवर्ड में यू कैन राइट सेकंड ARC का जो भी रिकमेंडेशंस है, जो भी कमिटीज का रिकमेंडेशंस है, पुंची कमीशन है और आई थिंक और भी हैं। जुडिशियल केसेस आपको याद आ रहा है वो मेंशन कर सकते हैं। लॉ कमीशन का कोई रिकमेंडेशन है तो वो लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप इसको DPSP से लिंक कर सकते हैं। हर चीज के लिए ऑलमोस्ट एक DPSP है, वेलफेयर स्टेट के लिए एक DPSP है, इनइक्वालिटी के लिए एक है, लीगल एड के लिए है, विलेज पंचायत के लिए है। तो जो भी जहाँ पे भी जो भी चीज रेलेवेंट लग रही है आप उसको पुट कर सकते हो। गवर्नेंस की बात करें तो अगेन डिफाइन द टर्म। यहाँ पे मैं फ्लो चार्ट भी यूज कर लेता था, जैसे गुड गवर्नेंस का क्वेश्चन कई बार आता है तो आई यूज टू रिमेम्बर एन एक्रोनिम स्मार्ट, और मैं वैसे लिख देता था कि गुड गवर्नेंस इज अ गवर्नेंस विच प्रोवाइड्स स्मार्ट गवर्नेंस, और फिर स्मार्ट के नीचे फ्लो चार्ट बना देता था कि स्मार्ट इज S फॉर स्मार्ट, M फॉर मोरल, A फॉर अकाउंटेबल, R फॉर रिस्पॉन्सिबल, T फॉर ट्रांसपेरेंट। तो ऐसा कुछ आप बना सकते हो अपने लिए। बॉडी में what we'll do is again break down the question पेस्टल फॉर्मेट में या स्टेक होल्डर वाइज आप जा सकते हो। वे फॉरवर्ड में आप सेकेंड ARC के रिकमेंडेशंस गवर्नेंस के लिए भी काफी सारे हैं, वो लिख सकते हैं। इसके अलावा बेस्ट प्रैक्टिसेस, जैसे उड़ीसा का काफी सारे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं गवर्नेंस से रिलेटेड, दिल्ली के हैं वो आप लिख सकते हो। सेवोत्तम मॉडल मॉडल है ये आप लिख सकते हो। कंक्लूजन मैंने एक आध याद किया हुआ था, मैक्सिमम गवर्नेंस, मिनिमम गवर्नमेंट, वो आप लिख सकते हो। फिर सोशल जस्टिस की अगर हम बात करें तो अगेन सोशल जस्टिस में वो एक तो डेफिनेशन तो हमेशा वुड बी एन ऑप्शन फॉर यू, बट यू कैन ऑल्सो डू हेयर इज कि आप कोई डेटा मेंशन कर दो या कोई रिपोर्ट मेंशन कर दो कि अगर कोई बेसिकली इनइक्वालिटी का बात अगर है सोशल जस्टिस के किसी क्वेश्चन में, तो यू कैन एक्चुअली मेंशन कि ये जो सेक्शन है वो ऐसे ऐसे अफेक्टेड है बेस्ड ऑन द रिपोर्ट ऑफ, किसी का भी हो सकता है, असर का रिपोर्ट हो सकता है किसी का भी, तो दैट प्रोवाइड्स अ वेरी इंटरेस्टिंग इंट्रोडक्शन टू द एग्जामिनर। बॉडी में आप बेसिकली वही स्टेक होल्डर बेसिस पे जा सकते हैं कि अगर जैसे कि एजुकेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है
तो एजुकेशन का इंडिविजुअल लेवल पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, वो पॉवर्टी साइकिल में फैमिली फंस रही है तो वो भी बना सकते हो आप। सोसाइटल लेवल पे क्या हो रहा है, नेशनल लेवल पे हम एसडीजीज को नहीं हम अपने अचीव कर पाएंगे, वो आप मेंशन कर सकते हो। चैलेंजेस भी मोरलेस इसी लाइंस पे। वे फॉरवर्ड में बेस्ट प्रैक्टिसेस, आपका कमिटीज का रिकमेंडेशंस। ये जो कमिटीज का रिकमेंडेशंस है, बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ये सब बेसिकली आपको थोड़ा सा प्रिपेयर करना पड़ेगा। या तो आप किसी टॉपर का कॉपी उठा सकते हो, टॉपर का कॉपी इन द सेंस टॉपर के कंपाइलेशंस। जैसे अभी मैं शायद बेंजो पी जोजे करके एक हैं टॉपर, उनका मैं देख रहा था, उनका कमिटीज का रिकमेंडेशंस उन्होंने बड़े स्मूथ वे में किया हुआ है। इससे रिलेटेड एक प्रैक्टिकल टिप ये है कि दुनिया में बहुत सारी कमिटीज हैं, बहुत सारे उनके रिकमेंडेशंस हैं। आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि कमिटीज के रिकमेंडेशंस आप बॉडी में नहीं इतना लिखोगे, आप वे फॉरवर्ड में ही लिखने वाले हो मोस्टली, जो कि 1 से 2 लाइन 3 लाइन आप लिखोगे। तो उसी तरीके के नोट्स होने चाहिए कि बड़े शार्प होने चाहिए कि भैया जस्टिस एक्स कमिटी है, उनके ये 4 रिकमेंडेशन है इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। वो 4 चीजें आपको याद होनी चाहिए, आप जहां पे रिलेवेंट लगेगा आप उसे लिखेंगे। सेम गोस फॉर बेस्ट प्रैक्टिसेस। बेस्ट प्रैक्टिसेस या तो आप ढूंढ लें या फिर अगेन किसी टॉपर का रेफर कर लें, बट बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ें कि अगर जापान का फ्लड मैनेजमेंट अच्छा है तो कैसे है, क्यों है। उसका टाइम मे बी ऑन योर ओन लेवल आप कभी बाद में परस्यू कर सकते हो, बट फॉर एग्जाम पर्सपेक्टिव इट इज इंपॉर्टेंट कि आप 2 लाइन में उस सिस्टम को एक्सप्लेन कर सको कि भाई दिस इज रेलिवेंट फॉर इंडिया फ्लड मैनेजमेंट एज वेल। फिर इंटरनेशनल रिलेशंस आ जाएगा। इंटरनेशनल रिलेशंस में स्ट्रक्चर का उतना इशू नहीं होता है यूजुअली, क्योंकि बहुत ही क्लियर कट क्वेश्चन आते हैं, और इसलिए इसको स्किप नहीं करना चाहिए। आई थिंक इसके क्वेश्चन भी नहीं छोड़ने, और इसको तैयार भी करना बड़ा आसान है। मोरलेस आपको बुक ना पढ़े, आप करंट अफेयर्स अच्छे से कर लेंगे तो हो जाएगा। मैं मेंस 365 से ही करता था, तो मेरा तो हो जाता था मोस्टली। कंटेक्स्ट बेस्ड, डेफिनेशन बेस्ड आप इसमें इंट्रोडक्शन मेंशन कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ब्रिक्स का पूछ लिया है, तो ब्रिक्स के लिए फ्लो चार्ट भी बना सकते हो अलग से आप, कि ब्रिक्स का दुनिया की जीडीपी में कितना हिस्सा है, पॉपुलेशन में कितना हिस्सा है, ऐसे सो एंड सो। तो एक फ्लो चार्ट से आपका और थोड़ा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा आंसर। फिर बॉडी में आप आओगे, तो अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में पूछा गया है कि इंडिया इसराइल के रिश्ते कैसे हैं, इंडिया अमेरिका के रिश्ते कैसे हैं, तो आप को उनका कोऑपरेशन और उनका लिमिटेशंस दोनों ही बताना है। तो यू कैन थिंक इन द टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल हमारा रिश्ते क्या है, कल्चरल हमारा कनेक्शन कैसा है, इकोनॉमिक हमारे रिश्ते कैसे हैं, एनर्जी का रिक्वायरमेंट हम लोग कैसे एक दूसरे से डील करते हैं एनर्जी का, इमर्जिंग चैलेंजेस जो भी हैं हम लोग उसमें कैसे डील कर रहे हैं। जैसे इंडिया अमेरिका इमर्जिंग चैलेंजेस में काफी जो है कोऑपरेट कर रहे हैं। टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन क्या है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन क्या है, डिफेंस बेस्ड कोऑपरेशन क्या है, न्यूक्लियर लेवल पे कुछ अगर हो रहा है तो उसको कोऑपरेशन को लिखते हैं। हेल्थ में वैक्सीन मैत्री है इंडिया का, तो वो अगर कोई कोऑपरेशन आप मेंशन कर पाओ तो ये हो गया कोऑपरेशन। इनमें से किसी में कोई ना कोई लिमिटेशन भी होगा, हो सकता है हमारा इकोनॉमिक कनेक्शन उतना अच्छा नहीं है, तो फिर वो कोऑपरेशन के बजाय आप फिर लिमिटेशन वाले सेक्शन में लिख दोगे कि यहाँ पे अभी वे इंपॉर्टेंट है कि हम इम्प्रूव करें। वे फॉरवर्ड में नेशनल इंटरनेशनल गवर्नमेंट एफर्ट्स आप लिख सकते हैं। कंक्लूजन में एक्चुअली आपको बड़ी आसानी से इस पे स्लोगन मिल जाएगा यूजुअली, क्योंकि अभी इंडिया मतलब आई थिंक ऑनरेबल पीएम के काफी सारे कोट्स हैं रिलेटेड टू, या एक्सटर्नल अफेयर्स के जो हमारे मिनिस्टर हैं उनके काफी सारे कोट्स हैं हर देश के स्पेसिफिक, कि इंडिया इसराइल के रिश्ते कैसे हैं, इंडिया श्रीलंका के रिश्ते कैसे हैं, हर उसका कोई कोट मिल जाएगा, तो वो आप लिखोगे कंक्लूजन में, तो इट विल हैव अ वेरी गुड इम्पैक्ट। डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं, जीएस 3, तो ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया था ज्योग्राफी के टाइम पे। तो अब हम साइंस एंड टेक पे आ जाते हैं। साइंस एंड टेक भी अगेन स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आते हैं, नैनो टेक्नोलॉजी और उसकी एप्लीकेशंस क्या है, इस टाइप का एक क्वेश्चन हो सकता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी आप डिफाइन कर दोगे, आप उसका कंटेक्स्ट मेंशन कर सकते हो, डेटा मेंशन कर सकते हो कि इंडिया के लिए उसका रिलेवेंस ऐसे ऐसे है, जीडीपी में इतना Slide. कंट्रीब्यूट करेगा Mukund, you have to change the slide GS3 के लिए. ओके सॉरी, आई थिंक हाँ जीएस 2 हमारा डन हो गया, जीएस 3 तो साइंस एंड टेक में आप ये कर सकते हैं। ठीक है, फिर बॉडी के लिए व्हाट यू कैन डू इज, आप एप्लीकेशंस में जैसे नैनो टेक्नोलॉजी का ही मैं एग्जांपल लेके चलता हूँ। तो पूछ रहे हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में, तो आप बॉडी में उसके एप्लीकेशन मेंशन कर सकते हो अलग अलग सेक्शंस में, कि एजुकेशन में कुछ अगर इम्प्लीमेंटेशन है, तो हेल्थ में कुछ अगर उसका एप्लीकेशन है, एग्रीकल्चर में है, मैन्युफैक्चरिंग में है, फाइनेंशियल सेक्टर में कुछ होता है ब्लॉकचेन का, जैसे फाइनेंशियल सेक्टर में है, गवर्नेंस में ब्लॉकचेन का है, लॉ इन्फोर्समेंट में, लैंड मैनेजमेंट में, रिसोर्स मैनेजमेंट में, डिजास्टर मैनेजमेंट में, कम्युनिकेशन में, सिक्योरिटी में, एनर्जी में, ऑप्टिमाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस में। तो ये अलग अलग टेक्नोलॉजी के लिए एक ड्राफ्ट था मेरा कि मैं एप्लीकेशंस इस पर्सपेक्टिव से लिखूंगा, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी हो, चाहे ब्लॉकचेन हो, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, चाहे कुछ और हो।
इम्पैक्ट्स की अगर हम बात करें तो अगेन यू कैन डिराइव दैट फ्रॉम द एप्लीकेशन ओनली, कि अगर एग्रीकल्चर में एप्लीकेशन है तो फार्मर का जो पॉवर्टी का पॉसिबल प्रॉब्लम है वो कम होगा। सो एंड सो आई थिंक इम्पैक्ट आप वैसे कनेक्ट कर सकते हो। इशू में भी आई थिंक थोड़े से इसमें ड्राफ्ट बनाना आसान है। आप आसानी से इशू सोच सकते हो कि टेक्नोलॉजी का एक इशू तो यही है साइंस एंड टेक का, कि सोशल डिवाइड क्रिएट हो रहा है, कुछ लोगों को एक्सेसिबिलिटी है कुछ को नहीं है। तो नैनो के लिए नैनो डिवाइड आप लिख सकते हो। लो रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग है इंडिया में, वो एक इशू है साइंस एंड टेक से रिलेटेड। सिक्योरिटी और प्राइवेसी इशूज हो सकते हैं। यूजर राइट्स को डिफाइन करना एक इशू है, उनको इन्फोर्स करना एक इशू है। मिसयूज के इशू है कि क्रिमिनल एक्टिविटीज की जा सकती है, टेररिज्म किया जा सकता है। एथिकल कंसर्न्स है, तो ये सब आप इश्यूज में लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड में अगेन जनरल वे फॉरवर्ड तो यही है कि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनहेंस करो, आप ह्यूमन कैपिटल इनहेंस करो। आप स्कीम्स लिख सकते हो गवर्नमेंट की। आप इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स लिख सकते हो, जैसे असिलोमार प्रिंसिपल्स हैं एआई के लिए, आप वो लिख सकते हो। प्रेसिडियो प्रिंसिपल्स हैं ब्लॉकचेन के लिए, आप वो लिख सकते हो। तो ऐसे करके आप कंक्लूड कर सकते हो वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन। कंक्लूजन में साथ में आप स्लोगन भी लिख सकते हो, जैसे जय विज्ञान जय अनुसंधान मैं एक लिखता था। टेक फॉर ऑल, एआई फॉर ऑल। मैंने सोचा था एआई की जगह नैनो टेक भी हो सकता है, वो कोई सा भी टेक्नोलॉजी हो सकता है। इकोनॉमी की बात करें, इकोनॉमी के इंट्रोडक्शन में अगेन जीएस 3 में जैसे जीएस 2 में कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स और जुडिशियल केस लॉज का रेलेवेंस था, इकोनॉमी में डेटा का रेलेवेंस ज्यादा आएगा। तो आइडियली व्हाट यू शुड बी ट्राइंग टू डू इज कि आप डेटा के साथ शुरुआत करें। जैसे अगर जीएसटी पे सवाल है, तो जीएसटी का कोई डेटा होगा कि जीएसटी से इतना फर्क पड़ा है रेवेन्यू कलेक्शन में, तो आप उसको डेटा में मेंशन कर सकते हो। कोई रिपोर्ट अगर है जीएसटी के ऊपर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, आप उसको मेंशन कर सकते हो। तो ये आप कर सकते हो। और बाकी फिर आखिरी ऑप्शन तो यही है, कोई डेटा ये याद नहीं आ रहा है तो आप डिफाइन ही कर दो कि जीएसटी इज वन टैक्स फॉर ऑल, तो वन टैक्स फॉर द इंटायर नेशन। तो वो एक लास्ट रिजॉर्ट रहेगा जीएसटी में उससे। बॉडी की बात करें, बॉडी में यू हैव टू ब्रेक डाउन इनटू पार्ट्स एंड अगेन फोकस ऑन द कोर पार्ट्स, क्योंकि जीएस 3 में भी इकोनॉमी में आई थिंक क्वेश्चन डिवाइडेड होता है दो तीन सेक्शंस में। तो कोर पार्ट का आपने डेफिनेशन लिख दिया इंट्रोडक्शन में, नॉन कोर के लिए आपने एक फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश की, और अगेन बॉडी में भी कोर पार्ट पे ज्यादा फोकस किया। और सब हेडिंग्स आप अलग से बना सकते हो अगर आगे का पार्ट कुछ है तो। इसके अलावा वे फॉरवर्ड में कमिटीज के रिकमेंडेशंस काफी सारे हैं। कमिटीज ऑलमोस्ट हर चीज के लिए हैं इकोनॉमी में, तो आप उनको अच्छे से ढूंढेंगे तो आपको मिल जाएंगी। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे टैक्स कलेक्शन हो, सब चीजों के लिए एक एक कमिटी है, तो उसका रिकमेंडेशन आप याद रख लोगे तो बड़ा ऑब्जेक्टिव आपका वे फॉरवर्ड होगा। बेस्ट प्रैक्टिसेस आप लिख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स लिख सकते हैं। कंक्लूजन भी इसमें आपको मौका मिलेगा कस्टमाइजेशन का। तो अगर एग्रीकल्चर का है तो यू कैन राइट डबलिंग फार्मर्स इनकम, फार्म गेट टू फोक का हमारा टारगेट है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप हमारा टारगेट है। इकोनॉमी है तो हमारे कुछ टारगेट्स हैं कि हम 70 लाख जॉब्स प्रोवाइड करें पर एनम, आई थिंक नीति आयोग का ये डेटा था। और भी है कि हमको कितना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनना है, ये लिख सकते हो आप। सिक्योरिटी में अगेन इंट्रोडक्शन में आप कोई रिपोर्ट मेंशन कर सकते हो, बॉडी में आप पेस्टल अप्रोच लगा सकते हो। वे फॉरवर्ड में व्हाट यू कैन डू इज आप इसको इस अप्रोच से रख सकते हो कि लॉ एंड ऑर्डर वे फॉरवर्ड क्या है और डेवलपमेंटल मेजर्स क्या है। तो लॉ एंड ऑर्डर मेजर्स में हो जाएगा कि आप कैसे अपनी फोर्सेस को एम्पावर कर रहे हो कि वो लड़ पाएं और लॉ एंड ऑर्डर इन्फोर्स कर पाएं। और डेवलपमेंटल मेजर्स में आप सोच रहे हो कि कैसे हम वहाँ जो अफेक्टेड एरिया के लोग हैं उनको मदद कर पाएं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर पाएं, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर पाएं। तो आई थिंक ये दो तरीके हैं। कमिटी रिकमेंडेशन आप लिख सकते हैं इसमें। कंक्लूजन मैंने इसमें सोचा था 4C अप्रोच था, एक तो कैपेसिटी बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एंड कनेक्टिविटी, एंड विनिंग पीपल्स हार्ट्स एंड माइंड्स। ये जो पूरे ड्राफ्ट है ये सारे मेरे खुद के बनाए नहीं है, मैंने काफी सीखा है अलग अलग टीचर्स से ओवर द कोर्स ऑफ पीरियड। तो बट आई थिंक यही है कि कुछ आप सीखते हैं, कुछ आप खुद इनोवेट करते हैं, तो वही आपको भी रखना है। जैसे मैं जो ड्राफ्ट मेंशन कर रहा हूँ जरूरी नहीं है पूरा का पूरा आप कॉपी करना है, बट इट कुड सर्व एज एन idea as to how you draft an answer and then you customize it based on your own requirement. Environment की अगर हम बात करें तो again introduction would be डेटा रिपोर्ट, आईपीसीसी या किसी और का डेटा रिपोर्ट। बॉडी में आप कॉजेज लिख सकते हैं, नेचुरल एंथ्रोपोजेनिक। इम्पैक्ट्स में आप पेस्टल लिख सकते हैं, पेस्टल अप्रोच। मेजर्स में आप नेशनल इंटरनेशनल मेजर्स लिख सकते हैं। वे फॉरवर्ड आप इंडिविजुअल, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे आपको वे फॉरवर्ड आसानी से मिल जाएंगे। कंक्लूजन में आप पंचामृत टारगेट्स लिख सकते हैं इंडिया के, SDG 13 लिख सकते हैं। अब आते हैं GS 4 पे, एथिक्स। एथिक्स में जो 10 मार्कर है एक तो
तो 10 मार्कर में आई थिंक इसका ड्राफ्ट बनना थोड़ा मुश्किल है। मुझे तो अभी तक नहीं समझ आया एग्जैक्ट ड्राफ्ट एथिक्स के पेपर के लिए क्या है। बट मोर एंड लेस यही है कि अगर कोई वैल्यू पूछिए, काइंडनेस पूछा है या हैप्पीनेस पूछा है, तो उसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एक अगेन यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मैटर करेंगी। आप डेफिनेशन सब लिखने वाले हैं, बट किसको एक्चुअल डेफिनेशन उसकी याद है वर्सेस कौन वही बना रहा है बैठ के, उससे फर्क पड़ेगा। तो यही है। बाकी एथिक्स में आई थिंक ड्राफ्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं वैल्यू एडिशन डिस्कस करना चाहूंगा कि कैसे आप अपनी कॉपी को थोड़ा डिफरेंट बना सकते हो। तो सबसे पहले तो आ जाते हैं 10 मार्कर्स पे। तो 10 मार्कर्स के लिए आइडियली होना ये चाहिए कि जो भी वैल्यूज हैं, जो भी कीवर्ड्स हैं, उनका आपके पास बेसिक नोट्स तैयार होना चाहिए, बेसिक डेफिनेशंस तैयार होना चाहिए। ये तो पहला लेवल हो गया प्रिपरेशन का। दूसरा लेवल ये होगा कि आप कोशिश कर रहे हैं कि आप अच्छे एग्जाम्पल्स प्रिपेयर कर रहे हैं, अच्छे एनेक्डोट्स प्रिपेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारे इंस्पिरेशनल एग्जांपल्स या तो आप देखो पेपर में आपको मिल जाएगा, बेटर इंडिया करके इंस्टाग्राम पे पेज है, वहां से मिल सकता है। बाकी आप किसी टॉपर का कंपाइलेशन भी पिक कर सकते हैं, तो वो विल डिपेंड ऑन यू। बट यू शुड हैव एग्जांपल फॉर एवरीथिंग। अगर आप काइंडनेस लिख रहे हो तो यू शुड हैव अ गुड सेट ऑफ एग्जांपल्स जो कि आप अपने बॉडी में मेंशन कर पाओगे, काइंडनेस का एग्जांपल ये है। एग्जाम्पल्स और वो हो गया। इसके अलावा अगर आप एथिक्स का थोड़ा सा थ्योरी भी अच्छे से पढ़ लो, तो आपका आंसर वुड लुक अ बिट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो ये थोड़ा सा डिबेटेबल हो सकता है आई थिंक, स्कॉलर्स को मेंशन करना रहता है कि नहीं करना रहता है। बट इन जनरल मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि without getting too technical, you can write and mention scholars like Aristotle या सुकरात जो है, सोक्रेटिस, तो बेसिकली प्लाटो, इन सब का बेसिक आप मेंशन कर सकते हो। ये बहुत ज्यादा टेक्निकल भी नहीं है, एंड इट गिव्स यू एन एज। तो ये जो जितने भी फिलोसफर्स हैं, इंडिया के भी बाहर के भी, जो आई थिंक सिलेबस का भी हिस्सा है, बट आप इनका सिलेबस के साथ पढ़ेंगे कि सुकरात कौन है, ये कौन है, उनका अंडरस्टैंडिंग क्या है, इनको फिर आपको 10 मार्कर्स में यूज करना है। हो सकता है डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं है कि एरिस्टोटल की फिलोसफी क्या है, बट उसको आप कहीं ना कहीं यूज कर सकते हो। उनका यूडामोनिया को कहीं ना कहीं यूज कर पाओगे। बुद्ध का अगर मध्यम मार्ग है तो उसको कहीं पे एग्जाम्पल की तरह या कहीं वैल्यू एडिशन की तरह आप यूज कर सकते हो। तो फिलोसफर्स वाला सेक्शन इंडिया और वर्ल्ड का दोनों ही बहुत अच्छा करना जरूरी है, बहुत अच्छे से करना। फिर अगर आता है, हम बात करते हैं जो केस स्टडीज आती हैं उनकी। तो केस स्टडीज में भी मोरलेस व्हाट यू विल ट्राई टू डू इज कि एक तो टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। एक केस स्टडी के लिए आपको रफली 14-15 मिनट करेंगे मिलेंगे करने को, तो उसको उतनी देर में पढ़ना, उतनी देर में लिखने के लिए आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरी चीज ये है कि इसके लिए आप ड्राफ्ट एक बेसिक बना सकते हो केस स्टडी के लिए, कि आप स्टार्ट कर सकते हो कोई भी कंटेक्स्ट मेंशन करने के लिए, मेंशन करके। फॉर एग्जांपल करप्शन का केस है, करप्शन का केस स्टडी है, तो आप कोई करप्शन का केस लिख दो कि ऐसा ऐसा करप्शन का केस अभी भी हुआ था, एंड इट इज रेलिवेंट टू द केस स्टडी दैट हैज बीन आस्क्ड। इसके अलावा स्टेक होल्डर्स मेंशन करना रहता है या नहीं, इज थोड़ा डिबेटेबल कि केस स्टडीज में कौन कौन स्टेक होल्डर है। मैं पर्सनली मूव ऑन कर गया था और मैंने मेंशन करना छोड़ दिया था, फॉर द सिंपल रीजन कि मुझे लगता था कि इट वॉज रिडंडेंट टू एन एक्सटेंट, क्योंकि स्टेक होल्डर्स तो दिख ही रहे हैं केस स्टडी में, तो मैं कोई नया वैल्यू ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैं उसी में से स्टेक होल्डर उठा के लिख दे रहा हूँ फ्लो चार्ट बना के। बट अगेन इट इज डिबेटेबल, कुछ लोग लिखते हैं कुछ नहीं लिखते हैं, डिपेंडिंग ऑन यू। फिर आता है जो वैल्यू कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या एथिकल डिलेमास होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप बिफोर हैंड थोड़ा एथिकल डिलेमास प्रिपेयर कर सकते हैं कि कॉमन एथिकल डिलेमास क्या होती हैं करप्शन केस में, या पहले से पढ़ सकते हैं। तो आपको वहीं पे जाके सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या एथिकल डिलेमा है केस स्टडी में, क्योंकि आपको पहले से पता है, तो आप उसको तुरंत वहीं पे लिख पाओगे। तो ये एक तरीका है। फिर कोर्स ऑफ एक्शन में भी बेसिकली व्हाट यू शुड डू इज कि आपको करना क्या है केस स्टडी में। तो ट्राई टू स्टार्ट विथ थोड़ा सिंपल चीजें, जैसे कि डेटा कलेक्शन करेंगे आप इंक्वायरी बिठा सकते हैं, आप डायरेक्टली कोई एक्शन नहीं लेंगे, एंड देन यू ग्रेजुअली ट्रांजिशन टू थोड़ा प्यूनिटिव मेजर्स कि आप कोई एक्शन लेंगे स्ट्रिक्ट, या किसी को आप सस्पेंड करेंगे। तो एक क्रोनोलॉजी आपको होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग उसकी। बाकी फिर कंक्लूजन में जब हम आते हैं, तो दिस इज वेर यू कैन यूज अ स्कॉलर और अ फिलोसफर दैट यू हैड रेड फॉर द इंटायर सिलेबस। तो उसमें आप मेंशन कर सकते हैं कि मैंने जो कोर्स ऑफ एक्शन चुना है दैट वाज बेस्ड ऑन सोक्रेटिस का फिलोसफी, जो भी था वर्चू एथिक्स था, तो मैंने वो वर्चू एथिक्स से सीख के ये कोर्स ऑफ एक्शन लिखा है। तो अब बेसिकली दिस गिव्स यू एन ऑब्जेक्टिव बैकिंग
कि ये सिर्फ आपका कोर्स ऑफ एक्शन आपने रैंडमली नहीं उठा लिया है, इट वाज बेस्ड ऑन सॉलिड थिंकिंग जो कि एथिकल ग्राउंड्स में जो है निहित है. तो आई थिंक this is more or less the draft and the value addition for ethics. Importance of micro theme based preparation तो I think we've already discussed, जहाँ पे वही कीवर्ड वाइज आपके पास सबका सिलेबस, सिलेबस के कीवर्ड वाइज आपके पास नोट्स प्रिपेयर्ड होने चाहिए. Absolutely. So, for next 5-10 minutes, we'll take some questions from Mukund, and after that, I and other mentors are there. So we will answer all your questions, but we'll take the important ones from Mukund, and rest questions we will answer. Okay. So, with respect to Mukund, environment pollution or economy, where do they get the authentic data from, or where did you get your data from? सर देखिए, ऑथेंटिक डेटा तो फिर गवर्नमेंट वेबसाइट से ही मिलता है, बट मेरा अंडरस्टैंडिंग इसमें ये था कि मैं ऑथेंटिक डेटा अगर उठाने जाऊंगा तो दैट वुड बी इम्प्रैक्टिकल, मैं खुद नहीं उसको प्रिपेयर कर सकता था. एंड एज यू राइटली पॉइंटेड आउट, होता क्या है कि इन्वायरमेंट का भी अब जैसे कि सी लेवल राइज है, तो हो सकता है इस साल ज्यादा है फिर चेंज हो Hmm. जाए, या एयर क्वालिटी है इस महीने कुछ और है अगले महीने कुछ और है. तो Hmm. आई थिंक द रूट ऑफ द क्वेश्चन इज कि कैसे आप एक्यूरेट डेटा प्रेजेंट करें. तो उसमें यही है कि एक फिक्स टाइमलाइन बना ले, जैसे सितंबर का अगर मेंस है, सितंबर में मेंस है, तो ट्राई एंड राइट समवेयर अराउंड जुलाई और अगस्त का डेटा. आपको कोचिंग के कोई कंपाइलेशन ले लें, अगर आपको लग रहा है कि वहां पे नहीं मिल पाया तो आप फिर खुद से रिसर्च करें कि जुलाई 2024 में एयर क्वालिटी क्या था इंडिया का, या एयर क्वालिटी में रैंकिंग क्या था इंडिया का. उसको आप याद कर लें, उसके बाद उसको बार बार अपडेट करने की कोशिश ना करें, बिकॉज 1 या 2 महीने पुराना डेटा इज नॉट बैड डेटा, इट इज रूटेड इन फैक्ट. एंड आई थिंक इट इज नॉट प्रैक्टिकल कि हमें 15 सितंबर को पेपर है तो 14 सितंबर का डेटा मैं लिखूं, वो तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि आपको डेटा के लिए रिवाइज बहुत बार करना पड़ता है, इट इज वेरी फैक्चुअल इन नेचर. तो माय सजेशन इज कि एक फिक्स टाइमलाइन बना लें कि मैं 1 या 2 महीने पुराने डेटा को अच्छे से कंपाइल करूंगा. वो कोचिंग का भी कंपाइलेशन हो सकता है, जहां जहां आपको कोचिंग के डेटा में मिसिंग लग रहा है कुछ, आप खुद रिसर्च कर सकते हैं, चैट जीपीटी यूज कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट you stick to it and you revise it multiple times. You don't need to update it every week. Follow-up question on data only, that are facts and data that they write in the exam validated by the examiner? I have no way to comment on it. I think मतलब वो तो logically I would say कि मतलब मेरा तो इसमें ये था कि एग्जामिनर को भी अंडरस्टैंडिंग होता होगा बेसिक की, जैसे सी लेवल राइज है तो कितना है, एक रफ आइडिया तो उनको होगा, दे आर वेरी नॉलेजेबल. तो आई डोंट थिंक कि वो जाते होंगे डेटा एकदम चेक करने, बट हाँ कहीं उनको डाउट होता होगा तो करते होंगे, बट अगेन आई हैव Examiner नो वे do टू. have a model answer. Examiner do have a model answer. So they check your copy on the basis of that model answer. So of बिल्कुल course, बिल्कुल. data is given on that model answer only. Okay. So Vaishnavi is asking, what had you made different in your fifth attempt that you could not do in your previous attempt, so that you got your name in the final list? ओके, तो आई वुड से कि इट वाज मोर ऑफ अ जर्नी. ऐसा नहीं था फिफ्थ अटेम्प्ट में मैंने बहुत सारी चीजें एकदम से चेंज कर दी थी, इट वाज इंक्रीमेंटल इम्प्रूवमेंट एवरी अटेम्प्ट. तो जैसा मैंने कहा कि 2 अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ था प्री क्लियर, तीसरे में मैंने प्री को क्लियर करने का ये रियलाइजेशन किया कि मैं रिवर्स रिवीजन करूँ, हर बार वही बुक ना पढूं सेम. उससे मुझे बड़ा हेल्प हुआ. दूसरा कि मैंने बाकी कोई एग्जाम की तैयारी नहीं की थी वो जो 3-4 महीने, क्योंकि कोविड के बाद था जो प्री था, तो मैंने 3-4 महीने सिर्फ वही पढ़ाई की थी यूपीएससी की. तो बिना डिस्ट्रैक्शन के ठीक से प्लानिंग से मैंने किया था तो प्री क्लियर हो गया था. बट मेंस की तैयारी नहीं की थी तो मेंस नहीं हुआ. फिर उसमें मैंने आइडेंटिफाई किया था कि मेरा ऑप्शनल का पार्ट वीक है, ऑप्शनल नहीं प्रिपेयर किया मैंने. तो फिर अगले अटेम्प्ट में मैंने ऑप्शनल अच्छे से किया था, उसमें ऑलमोस्ट 70 मार्क्स इंप्रूव हुए थे मेरे, तो मेरा मेंस क्लियर हो गया था. बट क्योंकि मैंने इंटरव्यू को समझा नहीं था उस वक्त अच्छे से, अपने डैफ के नोट्स उतने अच्छे से बनाए नहीं थे, तो मैं उस स्टेज में फोर्थ अटेम्प्ट में मेरे इंटरव्यू में मार्क्स बहुत कम थे, 135 थे. फिर मैंने ये रियलाइज किया कि इंटरव्यू का भी इंपॉर्टेंस कैसे है, कैसे मैं क्रैक कर सकता हूँ. तो फिर इंटरव्यू की प्रिपरेशन की, तो इंटरव्यू में 55 मार्क्स इंप्रूव हुए, 190 आया फिफ्थ अटेम्प्ट में. तो उसकी वजह से फिफ्थ अटेम्प्ट क्लियर हुआ. तो इट वाज इंक्रीमेंटल रादर देन मी डूइंग समथिंग वेरी मैजिकल इन फिफ्थ अटेम्प्ट. वो हर अटेम्प्ट का लर्निंग था. Right. How did you incorporate revision in your schedule? When did you revise in these time frames? रिवीजन का आई थिंक एक कर्व होता है, एबिंगहॉस कर्व उसको बोलते हैं. हालांकि इट इज आइडियलिस्टिक इन नेचर, मैंने कभी उसको एग्जैक्टली नहीं इम्प्लीमेंट किया, बट द आइडिया इज कि आप एक बार उस चीज को पढ़ें,
तो उसे फिर एक हफ्ते बाद रिवाइज कर लें, फिर उसे एक महीने बाद रिवाइज कर लें, फिर उसे 6 महीने बाद रिवाइज कर लें, फिर अगले साल रिवाइज कर लें। तो एक कर्व आपको मिल जाता है, आपका मेमोरी रिटेंशन ठीक रहता है। और बेसिक एक थंब रूल में ये भी फॉलो करता था कि जो भी चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ उसे 3 बार एटलीस्ट पढ़ लूँ, उसके बाद ही मैं ये सोचता था कि मैं इससे क्वेश्चन कर पाऊंगा। तो ये दो आई थिंक बेसिक रूल्स हैं। Right. Last question before you go. Do multiple attempters pose any added advantage over one who is giving first attempt in tackling the unpredictability of prelims? Basically, veterans versus beginners in tackling the unpredictability of prelims. आई थिंक प्रोज एंड कॉन्स दोनों होते हैं ज़्यादा रन देने के। प्रो ये होता है कि अब जैसे कोई चीज़ बहुत अनसर्टेन आ जाती है, प्री जैसे कि बहुत रैंडम आ जाता है लेट्स से, तो क्योंकि आपने बहुत बार दिया हुआ है वो एग्ज़ाम, तो आप आई थिंक उतना पैनिक उस मोमेंट में नहीं करते हो कंपेयर टू समवन जिसने पहली बार ही वो एग्ज़ाम का सिचुएशन हैंडल कर रहा है और पहली बार ही उसको अनसर्टेनिटी देखने को मिल रही है इतनी सारी। तो वो एक डेफिनेट फैक्टर है। इसके अलावा कौन आई थिंक ये है कि जब आप बहुत ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, देते हैं, तो आप एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं जहाँ पे आपको ये भी लगता है कि मुझे सब कुछ आता है, बट एट द सेम टाइम आपको सब कुछ याद नहीं रहता है, क्योंकि आपने रिवाइज उस टाइम नहीं किया है। तो वो फिर एक खुद का सेल्फ अवेयरनेस होना चाहिए कि मुझे लक्ष्मीकांत का चीजें बेसिक ऊपर ऊपर से पता है, बट मुझे रिवीजन करना पड़ेगा फिर भी। तो वो मल्टीपल अटेम्प्टर्स के साथ वो इशू रहता है आई थिंक। Hmm. Great. So, thank you so much, Mokun, for taking out your time. It's always a pleasure to interact with you, host you. I wish you the best for your this year attempt also.